Hello, my dear students. So, welcome to our new lecture. Okay, from this lecture, we are going to start our new chapter, that is chapter number 5, Substances in the Surroundings, their states and properties. Okay, so in the previous classes, you have studied different states of matter or different states of substances. Okay, we all know that the substances are found in three states, that is solid, liquid, and gaseous state. Okay, so yeah, one question is there. Can you recall or name the solid, liquid, and gaseous states of water? Now we have studied about solid state, liquid state, and gaseous state, okay, in fifth standard, fourth standard, okay. So we know solid state or the substances which are in solid state are very hard substance, okay. They have a definite volume, they have definite shape, size, okay, and the molecules of the solid substances are attracted by a very strong bond. Okay, liquid state or liquid substances are the substances where the bond between the molecules are not that much strong, okay, and they do not have a definite shape or size. Okay, liquid substances do not have a definite shape or size. They attain the shape of the container in which they are stored. Okay, and we also know about gaseous substances. Those are the substances which do not have definite shape or size, and the force of attraction between the molecules of gaseous substances is very much weak. Okay, and they attain the shape or size of the container in which they are stored. Okay, so in this particular chapter we are going to study about the different types of substances, okay, and we will see their states and the properties of those substances. Okay, now we must answer the given question: what are the different states of water? Okay, so we know that solid state, the solid state of water is in the form of ice. Okay, पानी सॉलिड स्टेट में कब होता है? जब वो आइस के फॉर्म में होगा. ओके, सो आइस क्या है? सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर है. ओके, देन लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर, डेफिनेटली इट इज द वाटर इटसेल्फ. ओके, सो वाटर नॉर्मली जनरल कंडीशंस में एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड कंडीशंस, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर में वाटर कौन से स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में होता है. ओके, so water, this is in liquid state. Okay, and what is the gaseous state of water? It is nothing but vapor. Okay, water vapors क्या होते हैं? Gaseous state में होते हैं. So ice is the solid state, water is in liquid state, whereas the water vapor are in gaseous state. Okay, now change of state of substances. We all know that when we keep ice outside the refrigerator, okay, that is in a humid place, in a place where the temperature is not low. If we are keeping the ice at such place, then ice is going to melt. Okay, and that ice is going to be converted into a liquid water. अगर हम लोगों ने फ्रिज से आइस निकाला, बर्फ निकाला और उसको बाहर ऐसे रखा है कहीं पे भी, तो जाहिर सी बात है वो आइस क्या होता है? कुछ समय के बाद मेल्ट हो जाता है और हमें यहाँ मिलता है, पानी मिलता है. तो यहाँ पे हम लोग को क्या समझ में आता है कि जो स्टेट था सब्सटेंस का, आइस कौन से स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है, और वो सॉलिड स्टेट किस में कन्वर्ट हुआ? लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुआ. ओके, सो ये जो कन्वर्जन है इसे हम लोग क्या बोलेंगे? चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस बोलेंगे. यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन टेक पीसेस ऑफ कैंडल. आप लोग कैंडल के पीसेस कर सकते हैं. और कैंडल कौन से स्टेट में होता है? ऑब्वियसली सॉलिड स्टेट में होता है. तो इन दिस पर्टिकुलर इलिस्ट्रेशन और इन दिस पिक्चर यू कैन सी देयर इज अ बाउल, एंड इन दिस बाउल पीसेस ऑफ वैक्स, ओके, मोम के जो टुकड़े हैं वो यहाँ पे रखे गए हैं. ओके, और ये कौन से स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है. उसके बाद क्या किया गया है? इसे हीट किया गया है. ओके, हीट प्रोवाइड करने के बाद ये जो वैक्स था वो क्या होने लगा? मेल्ट होने लगा.
ओके, और मेल्ट होने के बाद वैक्स कौन से स्टेट में कन्वर्ट हुआ है, यहाँ पर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुआ है। ओके, और लिक्विड स्टेट में जो वैक्स कन्वर्ट हुआ है उसे हम लोग और ज़्यादा हीट करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होने वाला है, गैशियस स्टेट में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा वो, गैशियस स्टेट में कन्वर्ट होगा। ओके, नाउ लिक्विड वैक्स जो है अगर उसको हम लोग स्पिरिट लैम्प के ऊपर से वापस निकालते हैं और कहीं ठंडी जगह पर रख देते हैं तो क्या होगा, वो जो लिक्विड वैक्स है वो वापस से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये एग्जाम्पल से हमें क्या समझ में आता है कि जो प्रोसेस है सब्सटेंस का, जो स्टेट चेंज होता है, ये जो प्रोसेस है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द सब्सटेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। ओके, सो हमें ध्यान में क्या रखना है कि सॉलिड से हम लोग किसी भी सब्सटेंस को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं और लिक्विड से उसे हम लोग गैशियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इवन वी कैन कन्वर्ट गैशियस सब्सटेंसेस इनटू लिक्विड स्टेट and liquid substances into solid substances. Okay, one of the better example of liquid to solid conversion is water itself. If you take water and if you place that water inside a refrigerator, what happens, that water gets converted into a ice. अगर आप लोग डीप फ्रीज में ओके या फिर बहुत ही लो टेम्परेचर में पानी को रखते हो, स्टोर करते हो, तो वो क्या होता है, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सो दिस आर सम एग्जांपल्स ऑफ कन्वर्जन बिटवीन द सब्सटेंसेस ओके इन देयर स्टेट्स। नाउ यहाँ पे आपको कुछ लिस्ट दी हुई है। ओके, देयर आर सर्टेन केमिकल्स एंड सब्सटेंसेस मेंशन्ड ओवर हियर, फॉर एग्जांपल स्पिरिट, ओके, देन कैम्फर, पेट्रोल इज देयर, घी, coconut oil, naphthalene balls or ammonium chloride. These are all examples of substances and chemicals. Now which ones freeze in winter? इनमें से कौन सा केमिकल विंटर सीजन में फ्रीज हो जाता है? ओके, हम सबको मालूम होगा इसका आंसर। द आंसर इज कोकोनट ऑयल। जो कोकोनट ऑयल होता है वो क्या होता है, विंटर सीजन में फ्रीज होता है। मतलब क्या होता है, वो लिक्विड से वो सेमी सॉलिड स्टेट में चला जाता है या फिर सॉलिड स्टेट में चला जाता है। तो ये क्यों होता है, टेम्परेचर लो होने की वजह से होता है। और यहाँ पे हमें क्या देखने मिल रहा है कि जो लिक्विड कोकोनट ऑयल था वो किस में कन्वर्ट हुआ, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हुआ। ओके, उसके बाद नैप्थलीन बॉल्स है। आपको मालूम है नैप्थलीन बॉल्स को जब हम लोग हीट करते हैं, ओके, व्हेन यू बर्न द नैप्थलीन बॉल्स, ओके, दे आर डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू अ गैसियस स्टेट। नॉर्मली हम लोग सॉलिड मटेरियल को जब हीट करेंगे तो वो लिक्विड में पहले कन्वर्ट होता है, लेकिन नैप्थलीन बॉल के साथ जरा केस अलग है। उसे जब हम लोग हीट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होता है, गैशियस में कन्वर्ट होता है। सो कन्वर्जन, लिक्विड का कन्वर्जन सॉलिड का कन्वर्जन गैशियस में जब होता है डायरेक्टली, तो उस कन्वर्जन को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसे, सब्लिमेशन। ओके, सो फिलहाल ये आपके चैप्टर में नहीं है ये पर्टिकुलर पॉइंट, सब्लिमेशन क्या होता है वो, लेकिन मैं आपके जनरल नॉलेज के लिए आपको बताता हूँ कि द कन्वर्जन ऑफ एनी सॉलिड मटेरियल directly into gaseous material or gaseous substance, that conversion is called as sublimation. Okay, तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए आपको जो हम लोग स्टडी कर सकते हैं और उससे हमें कौन से स्टेट में वो सब्सटेंस कन्वर्ट होता है वो हमें पता चलेगा। ओके, which liquid have you seen change into a vapor? Okay, if we heat this particular chemicals or substances, we can observe certain changes. Okay, which solids directly change into gaseous state? The answer is naphthalene. Okay, naphthalene is directly converted into a gaseous state. Okay, and this process is called as sublimation process. Now if we go to another point, okay, what do we learn from this? After certain experiments and observation, what we can get from it, that the state of substance changes if it is heated or cooled. Okay, if you are heating any substance or if you are cooling any substance, okay, in that case the state of that particular substance will change. Okay, या तो आप किसी सब्सटेंस से हीट को निकाल रहे हो बाहर, मतलब कोई सब्सटेंस हीट को रिलीज कर रहा है, हीट रिलीज हो रहा है मतलब क्या,
कूल हो रहा है वो सब्सटेंस, ओके, या फिर कोई सब्सटेंस हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब क्या, हम उसे हीट कर रहे हैं, जला रहे हैं, या फिर हम उसे थर्मल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, इन दैट केस उसका स्टेट क्या होगा, चेंज होगा, ओके। एवरी सब्सटेंस इन आवर सराउंडिंग इज फाउंड इन आइदर सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। आप अपने आसपास देखो, आपको जितने भी सब्सटेंस देखने मिलेंगे वो या तो सॉलिड स्टेट में होगा, या फिर लिक्विड में होगा, या फिर गैसियस स्टेट में होगा, ओके। तो आपकी बुक सॉलिड स्टेट में है, पानी लिक्विड स्टेट में होता है, ऑयल लिक्विड स्टेट में होता है, ओके, पेट्रोल, केरोसिन, ऑल दिस आर इन लिक्विड स्टेट। योर ब्लड इज इन लिक्विड स्टेट, ओके। मेरे सॉलिड स्टेट्स के बहुत सारे एग्जांपल्स आपको आसपास दिख जाएंगे, ओके। योर पेंसिल, इरेजर, देन योर टेबल, फैन, वॉल, दिस आर ऑल इन सॉलिड स्टेट। गैसियस स्टेट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, सबसे इजी एग्जाम्पल, एटमॉस्फेयर में जो गैसेस प्रेजेंट है वो सब क्या है, गैसियस स्टेट में है। एयर क्या है, गैस है, ओके। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ gaseous state. Now, in the 19th century, the scientist J. Willard Gibbs showed that the characteristic properties of a substance depend on its physical state and the arrangement of particles in it. J. Willard Gibbs का क्या कहना है, या फिर उन्होंने क्या हमें बताया है कि जो भी प्रॉपर्टीज है किसी सब्सटेंस के, वो उसके फिजिकल स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है, और उसमें जो मॉलिक्यूल्स है या फिर जो एटॉमिक पार्टिकल्स है उसका अरेंजमेंट कैसा होगा, उसके ऊपर वो प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है, ओके। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट दिस सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट्स, ओके। यहाँ पे आपको सॉलिड के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, लिक्विड के बारे में और गैसेस के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। सो टू बिगिन विथ, example of solid is given a piece of iron, okay, any piece of iron, aluminium, copper, okay, all these metals or any substance, these are all in solid state, okay. Then shape of solids, they have a shape of its own, that means they have a definite shape, okay. They retain their shape and no matter how it is kept. सो आप बुक को कहीं पे भी रखो, कैसे भी रखो, उसका शेप वैसे ही रहने वाला है। फॉर एग्जाम्पल आप स्टोन लो, स्टोन को आप कहीं पे भी रखो, कैसे भी रखो, उसका शेप क्या होगा, सेम रहेगा, अनटिल एंड अनलेस उसके ऊपर बहुत ही मैक्सिमम अमाउंट में अनबैलेंस फोर्स हम लोग एग्जर्ट ना करें तब तक, ओके। तो वो उसका शेप क्या होता है, चेंज नहीं होता। उसके बाद वॉल्यूम को अगर हम लोग देखते हैं सॉलिड के, तो क्या है, सॉलिड्स हैव अ डेफिनाइट वॉल्यूम, ओके। एंड सॉलिड्स लाइक शुगर, सैंड, व्हेन पोल्ड ऑन अ फ्लैट सरफेस फॉर्म अ हीप, ओके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सरफेस है और आप लोग क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर शुगर जो है वो पोर करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब आपने शुगर का बैग लिया और शुगर के बैग से आप लोग क्या कर रहे हैं, शुगर को रिलीज कर रहे हैं यहाँ से, ओके। सो क्या होगा, इस तरीके से एक माउंटेन क्रिएट हो जाएगा, स्मॉल माउंटेन शुगर का, ओके, हीप क्रिएट हो जाएगा, ओके। दिस इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। नाउ लिक्विड्स क्या है, देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, वाटर है, स्पिरिट है, या फिर ऑयल, ओके। दिस आर एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड्स। नाउ लिक्विड्स डज नॉट हैव a shape of its own, okay. Liquid substances do not have their own shape, okay. They take the shape of the container in which they are stored, okay. For example, take a glass of water, you pour that water in any water bottle, the shape is going to be exactly similar to the shape of the bottle, okay. Or if you pour that water in any vessel, the shape will be similar to the shape of the vessel. सो लिक्विड क्या करता है, जिस कंटेनर में हम उसे स्टोर करेंगे उसी का शेप वो एक्वायर करता है, ओके। इट हैज अ स्पेसिफिक वॉल्यूम, देयर इज अ वॉल्यूम फॉर अ लिक्विड, ओके। ऑक्यूपाइज डेफिनाइट पोर्शन ऑफ अ कंटेनर, स्प्रेड्स ऑन अ फ्लैट सरफेस ऑन पोरिंग, फ्लोज डाउनवर्ड्स अलोंग द स्लोप। सपोज आप किसी भी सरफेस के ऊपर पानी को रिलीज करते हैं, ओके, तो हमें क्या देखने मिलेगा कि जो वाटर है वो क्या होने वाला है, फ्लो होने वाला है। गिरने के बाद क्या होगा, वाटर इस तरीके से फ्लो हो जाएगा। सो और अगर ये सरफेस परफेक्टली हॉरिजॉन्टल होने के बजाय इस तरीके से अलाइंड होगी, तो पानी क्या होगा, नीचे की तरफ फ्लो होगा, डाउन द स्लोप क्या होगा, वाटर फ्लो होगा, ओके। सो इससे हमें क्या समझ में आता है कि लिक्विड्स जो होते हैं वो
उनके पास फ्लोइंग प्रॉपर्टी होती है, दे कैन फ्लो ऑन द surface. Okay, that again shows us that the friction in liquid and the surface is very much low. Okay, now friction is somewhat different term for you, but I have just spoke about it. Now let us see another example or another state of matter, that is gases. Example given here is air. Okay. Now again, gases also do not have a shape of its own. Okay. Gases का भी कोई खुद का shape नहीं होता. They occupies all the available space. जिस कंटेनर में हम उसे रखेंगे वो पूरे कंटेनर का वो स्पेस क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा. They does not have a definite volume also. Now we have seen that liquid have specific volume, but gases do not have a definite volume. Okay, on changing the pressure on a gas in a closed container, its volume also changes. Now suppose एक कंटेनर है और इसमें मैंने 25 मीटर क्यूब का मैंने इसमें गैस क्या किया हूं, पोर किया हूं. ओके, ये कंटेनर में मैंने 25 मीटर क्यूब का गैस बंद करके मैंने रखा हूं इस कंटेनर के अंदर. ये सेम अमाउंट के गैस को आप लोग किसी छोटे कंटेनर में भी स्टोर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा ये गैस उस कंटेनर के वॉल्स के ऊपर वो क्या होगा, ज्यादा होगा. ओके, सो हमें ध्यान में रखना है कि जो गैसेस होते हैं उनमें प्रेशर ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल पैरामीटर होता है इन टर्म्स ऑफ स्टोरिंग दिस गैसेस इन अ कंटेनर. Okay, so this is about the three states of matter, that is solid, liquid and gases. Okay, so for today's lecture I am going to give you a homework, and your homework is you have to note down this table in your notebook. Okay, write everything from this table in your notebook. Okay, in the next lecture we will study about heat and change of physical state. Okay, we will study also about the thermometer. Okay, and the application of this particular device, that is thermometer, in the next lecture. Until then, goodbye.